रहा है। इसी भावना के साथ आइए आज का कार्यक्रम आगे बढ़ाते हैं। Today's celebration becomes even more special with the gracious presence of our chief guest. We feel highly honored to welcome Shri Rajeshwar Prasad ji, Deputy Mayor Ghaziabad, along us on this proud national occasion. Republic Day reminds us of our rights as well as our duties. Can you name any rights which we hold? We would like to invite Hriday from class 6 to guide us on this topic. Our Constitution grants us 6 fundamental rights, which are: first, right to equality; second, right to freedom; third, right to freedom of religion; fourth, right of constitutional remedies; fifth, right against exploitation; sixth, cultural and educational rights. Jai Hind, Jai Bharat. Happy Independence Day. Excellent. अब हम आमंत्रित करते हैं अभीक और अवनी को, जो इस विषय पर और प्रकाश डालेंगे। Good morning to our respected principal, chief guest, in charges, and my dear friends. A very happy Republic Day to everyone. Today, as we see the tricolor fluttering with pride, we aren't just celebrating a holiday, we are celebrating the spirit of being an Indian. That's right. While August 15 marks our freedom and January 26 marks our strength, it is the day in 1950 when our constitution came into effect, turning India into a sovereign, secular, socialist, and a democratic republic. You know, I've always wondered, we are in 8th class now and we study the Constitution in our civics lesson. But what does republic actually mean for us here in this classroom? It means that the law is supreme, whether it's the president of our country or the student like you and me. The rules apply to everyone equally. It gave us right to equality and right to education, which is why we all are here. Exactly, and our constitution, guided by the vision of Dr. B.R. Ambedkar, ensures that every citizen has voice. But Abhi, don't you think being a republic also comes with duties? Absolutely. We often talk about our rights, but we should also focus on our fundamental duties. I agree. For us, that means protecting our environment and keeping our school green, respecting the diversity of our classmates, and most importantly, standing up for what's right. India is growing rapidly, from reaching the moon with Chandrayaan to becoming a global hub for technology. As being the young student, we will lead the Viksit Bharat or a developed India of 2047. So let us take a pledge today. Let us not just read about democracy in our textbooks, but also live it through our actions. Let us be disciplined, stay curious, and always work for the progress of our motherland. Wishing you all a very happy Republic Day once again. Jai Hind. Wow, that was truly inspiring and reminded us of our duties. Thank you, Abhik and Avni, for the tremendous speech. अब बारी है अपनी राजभाषा की। क्या आप सभी जानते हैं हमारी राजभाषा क्या है? एनीवन? वह हिंदी है। तो कृपया तालियों के साथ अवंतिका और गौरांगी का मनोबल बढ़ाते हुए उनका स्वागत करें। आदरणीय प्रधानाचार्य महोदय, सम्मानित शिक्षकगण, मुख्य अतिथिगण एवं मेरे प्रिय साथियों, मैं गौरांगी निवासी और मैं अवंतिका त्यागी, हम दोनों का आप सभी को सादर नमस्कार। आज हम सभी यहाँ अपने देश के 77वें गणतंत्र दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। 26 जनवरी 1950 का दिन हमारे इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, क्योंकि इसी दिन हमारे देश में संविधान लागू हुआ तथा हमारा देश एक संपूर्ण गणराज्य बना। हमारे संविधान को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के नेतृत्व में तैयार किया गया है। यह संविधान हमें न्याय, स्वतंत्रता, सम्मान का और बंधुत्व का अधिकार दिलाता है। यही हमारे लोकतंत्र की
पहचान है। गणतंत्र दिवस हमें हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति दी और हमें आज़ादी दिलाई। महात्मा गांधी, भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जैसे महान नेताओं के बिना आज़ाद भारत की कल्पना अधूरी है। आज हमारा देश तकनीक, खेल, शिक्षा के क्षेत्र में निरंतर प्रगति कर रहा है, लेकिन एक सच्चे नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हम अपने देश की एकता तथा अखंडता को बनाए रखें तथा ईमानदारी, अनुशासन और मेहनत से अपने देश की सेवा करें। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि हम सब मिलकर एक आत्मनिर्भर, स्वच्छ और मजबूत भारत का निर्माण करें। अब आप सभी मेरे साथ दोहराइए, भारत मेरा देश है तथा सभी भारतीय हमारे भाई बहन हैं। हम भारत की गरिमा और संस्कृति को आगे बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत। They kill me, but they can't kill my ideas. Words by Bhagat Singh has proved. Discipline and unity reflect the strength of a nation. अब प्रस्तुत है कक्षा 9वीं और 11वीं के द्वारा मार्च पास्ट। Now we would like to invite respected chief guests and the principal sir to the stage to watch the parade of class 9th and 11th. Becomes the most respectful and proud moment of today's celebration. यह तिरंगा सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं, यह हमारे शहीदों के सपनों, त्याग और बलिदान का परचम है। अब हम विनम्रता पूर्वक अपने चीफ गेस्ट और प्रधानाचार्य से राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अनुरोध करते हैं। May I request everyone to please stand up. स्कूल के प्रिंसिपल साहब, स्टाफ, मेरे प्यारे बच्चों, अभी 20 जनवरी के शुभ अवसर पर हम लोग आज यहाँ एकत्रित हुए हैं। 2 दिन पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं बोलना तो चाहता था बहुत कुछ, लेकिन मेरे प्यारे बच्चों ने सब कुछ पहले ही बता दिया हमें, तो लेकिन फिर भी मैं बताता हूँ। आज एक तो हमारा उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस है। ये भी आज के दिन 24 जनवरी को 1950 को ही स्थापना हमारे उत्तर प्रदेश की हुई। ये हमें भी जानकारी होनी चाहिए।
हमारा रंग बिरंगा ये प्रदेश है उत्तर प्रदेश। जैसा कि अभी बताया मेरे प्यारे बच्चों ने, आज़ादी के बाद ये संविधान 1949 में जो है बना और 1950 में जो है इसको लागू किया गया। ये सभी लोग जानते हैं कि अम्बेडकर साहब का इसमें रोल ज़्यादा रहा, लेकिन इसमें बहुत बुद्धिजीवी लोग 299 यानी 299 लोगों ने इस पे काम किया। और ये आज ही के 26 जनवरी के दिन ही लागू हुआ 1950 को। तो आप जानते हैं कि प्यारे बच्चों, अगर आज हमें ये आज़ादी के जो दिन हम देख रहे हैं, हमारी महिलाओं को जो बिना घूंघट में देख रहे हैं, इससे पहले आज़ादी नहीं थी, संविधान से पहले। और मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि बच्चों ने बहुत कुछ बता दिया, मैं एक और चीज़ बता दूं, क्योंकि हमारा देश 200 साल तो अंग्रेजों ने गुलाम रखा, उससे पहले 500 साल मुगलों ने इसको गुलाम रखा। और इस आज़ादी के पाने के लिए हमारे बहुत अनेकों, चाहे वो राजगुरु हो, भगत सिंह हो, चंद्रशेखर हो, लाला लाजपत राय हो, सुभाष चंद्र बोस हो, जिनकी जानकारी तो आज तक भी नहीं हुई, ऐसे लोगों ने बलिदानी दी है। और उनके साथ साथ ऐसे कई लाख लोग रहे जिन्होंने बलिदान दिया, लेकिन इतिहास में उनका नाम आज तक नहीं है। मेरे प्यारे बच्चों, अगर हम आज़ादी से आज यहाँ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, आज स्कूलों में पढ़ रहे हैं, तो ये उन लोगों ने हमें आज़ादी दिलाई है। अंग्रेजों ने उन्हें फांसी पे चढ़ा दिया। मैं मानता हूं गांधी जी का भी बहुत बड़ा रोल आज़ादी में रहा, लेकिन सच बात यह है कि आज़ादी अगर हमें मिली तो संघर्ष से मिली है। आज़ादी का मतलब ये नहीं है कि जैसे कहा गया कि बिना खड़क ताल और उससे आज़ादी मिल गई। बहुत बलिदान दिया है लोगों ने, आज उनका इतिहासों में नाम नहीं है, कुछों का नाम आता है। जैसा कि आज हम लोग जो प्रोग्राम मना रहे हैं, तो मैं तो आज शर्मा जी के बुलावे के 3 दिन पहले बताया, तो मैंने कहा मैं ज़रूर आऊँगा और प्यारे बच्चों में ज़रूर मैं रहूँगा। बच्चों में सबसे पहले ये जानना चाहता हूँ कि क्या आज के युग में जिस तरीके से हमारे बच्चे पढ़ते हैं, लिख रहे हैं, सुबह सुबह जब स्कूल से चलते हैं अपने माँ बापों के कौन कौन पैर छू के आता है? पहले ये बताओ हाथ खड़े करके, सच में ही। लेकिन जिन बच्चों ने हाथ नहीं उठाया, मैं उनसे चाहूँगा वो भी अपने मम्मी पापा दादाजी के पैर छू के आए और यहाँ पे अपने गुरुजनों के भी पैर छू, ताकि आगे चलकर हमें ये हमारे जो पहले के हमारे जो विद्यालय रहे हैं, उनमें गुरु दक्षिणा का मतलब यही था कि हम अपने बड़े बड़े बुजुर्गों से, अपने टीचरों से आशीर्वाद लें। हमें बहुत सारी आगे चल के बहुत सारी, मैं कुछ हमारी बच्चियां हैं, अभी आप देख रहे हो, टीवी पे भी देखते होंगे, मैं कुछ बातें अलग हटके भी कहना चाहता हूँ। मैं क्या कहना चाहता हूँ कि हमारी बेटियां ये छोटी छोटी हैं, कल को ये 16 साल की 17 साल की हो जाएंगी, तो इनके लिए मैं एक और कहना चाहता हूँ कि हमारे प्यारे बच्चों, आज का युग बड़ा गंदा चल रहा है। बड़ा हमारे जो लड़के हैं, आपने देखा होगा असामाजिक तत्व के लोग बड़ी बड़ी महंगी बाइकों पे घूमते हैं, हमारे बच्चों को उन्हों पे बैठा के ले जाते हैं, उनको प्रलोभन देते हैं। तो मैं कहता हूँ उनसे भी दूर रहो, उनसे हमें दूर रहना है। अगर हमें किसी के साथ चलना है तो अपने माँ बाप के साथ चलना है, अपने भाई बहनों के साथ चलना है, किसी अन्य के साथ हमें नहीं जाना, किसी लालच में नहीं आना हमें। ऐसी कई घटनाएं हैं जो आपको याद करनी चाहिए, हमारे टीचरों को भी इनको बताना चाहिए, क्योंकि ये कल का भविष्य है। ये छोटी बच्चियां आज हैं, लेकिन 2 साल बाद 4 साल बाद ये बड़ी होने वाली हैं। तो मैं चाहता हूँ शिक्षा के साथ साथ कुछ बातें ऐसी कही जाएं ताकि हमारे बच्चे आगे चल के गलत कुरीतियों में ना पड़े।
जय हिंद। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। तेरे जैसा कोई नहीं है, नहीं सौ दुनिया घुमा है, नहीं कहीं तेरे जैसा कोई नहीं। मैं गाया चाहूं बस तेरी याद, जो मेरे साथ मुझको तड़पा दिलाती। सबसे प्यारी तेरी सूरत, प्यार है बस तेरा प्यार ही। मार तुझे सलाम, मार तुझे सलाम, अम्मा तुझे सलाम। ओ सामने मैं जावा, मेरी दिल जानिया, मैं शीश झुकावा, मेरी दिल जानिया। तेरे नाम जो कर जावा कम है तो तू सारे जहां से प्यारी, मेरे भारत की बेटी। सारे जहां पे भारी, मेरे भारत की बेटी। दिल जाने जान हमारी, मेरे भारत की बेटी। जीती हो, जीती हो। आजा आजा दिन में शाम आने के दिन, आजा जरी आने आजमाने के दिन। आजा आजा दिन में शाम आने के दिन, आजा जरी आने आजमाने के दिन। गुलामी को तोड़कर स्वतंत्रता का सूरज जब मुस्काया, तब संविधान की पावन ज्योति ने नए भारत का नया स्वरूप रचाया। 26 जनवरी का दिन ये सुनाता, कानून कर्तव्य और अधिकारों की बात, न्याय की डगर पर चलना सिखाता, समानता बने जीवन की सौगात। कलम से लिखा वो ग्रंथ महान, कलम से लिखा वो ग्रंथ महान, जिसमें हर जन का सम्मान लिखा है। न जाति ऊंची न कोई छोटा, न जाति ऊंची न कोई छोटा, मानवता का ही प्रमाण लिखा है। आओ मिलकर संकल्प ले हम, कर्तव्य से न कभी भागेंगे। सच्चाई ईमान और एकता से, सच्चाई ईमान और एकता से भारत को विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे। जय हिंद, जय भारत। Won several awards in medical field. I have proved that girls can become doctors too. I have opened many fields and
I have proved that girls can become doctors too. I have opened the door for every girl in medical field. Can you guess who am I? That's okay. My name is Dr. Anandi Gopal Joshi. Thank you. Good morning to all. I made my country proud. With I have won 3 ICC trophies. I am famous with the name of Mahi and Thala. Can you guess who am I? Yes, the right answer is MS. Thank you. आप सभी को सुप्रभात। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। मैंने अपने देश के लिए बहुत ही छोटी उम्र में संघर्ष और देशभक्ति शुरू कर दी थी। मैं अपने देश के लिए बहुत संघर्ष और देशभक्ति का प्रतीक था। मैंने सन 1931 23 मार्च के दिन अपने देश के लिए हंसते हंसते शहीदी दी थी। इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! इनकलाब जिंदाबाद! क्या आप पहचान सकते हैं मैं कौन हूँ? बिल्कुल सही जवाब, हाँ, मैं भगत सिंह हूँ। A very good morning to all. Being a girl is not my weakness, it is my strength. I believe in myself and my dreams. I was one of the ladies who has taken part in Operation Sindoor. Can you guess who am I? That okay, it's fine. I am Vyomika Singh. Thank you. Very good. I am the first Indian to score 50 international goals. I am the first Indian to score 50 international goals and also served as the captain of Indian football team in 87 international matches. Can you guess who am I? Yes, that's correct. I am Sunil Shetty. Thank you. जय हिंद, जय भारत। चमक उठी सनसनता बनी, वो तलवार हमने सुनी कहानी की। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। क्या आप बता सकते हैं मैं कौन हूँ? हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। मैं रानी लक्ष्मीबाई हूँ। धन्यवाद। नमस्कार। एक भारत, श्रेष्ठ भारत, यही हमारा संकल्प है। मुझे आधुनिक काल का चाणक्य भी कहा जाता है। वैसे जानूं मैं कौन? मोदी जी। Good morning all. I am the golden boy of India as I have served many gold medals in javelin throw. I play for my country, not just for medals. India is my strength. Can you guess who I am? Yes, that is right. I am Neeraj Chopra. Thank you. कुछ और भी कर रहे हैं ये? We have Thank you. From mountains high to river wide, my country stands in strength and pride. Many voices, many dreams, but bright flag with hopeful beams. They so strong, so we could stand, safe and proud, this free land. Now it's our turn, yours and mine, with God and future, bright and bright.
everyone, I Vivek. And I am Jia. We both are here to check your knowledge. Because we have been celebrating this glorious day, but we are unaware about some facts of our nation. Celebrate हुआ था. Any idea? Yes. Any guesses? The answer is Major Dhyanchand Stadium or Irving Stadium. The next question is when was the first Republic Day celebrated at राजपथ और कर्तव्य पथ? हमारा सबसे पहला रिपब्लिक डे राजपथ और कर्तव्य पथ पर कब मनाया गया था? Any guesses? 1955 is the right answer. Now my next question is, at what time flag hoisted or unfurled? किस टाइम पर हमारे फ्लैग को लहराया जाता है? Answer is the flag is hosted between 10 to 10:30 a.m. followed by parade and national anthem. My next question is how many minutes the parade lasts? कितने समय तक हमारी परेड होती है? Let me tell you the answer. 90 to 120 minutes. Now my next question is, how much distance does the parade covers? I am giving you two options: 5 to 9 kilometers or 6 to 8 kilometers. That's the right answer. Moving to our next question. Where does our Prime Minister goes in Republic Day? Principal sir, can you give the answer? Try. Let me tell you the answer. Red Fort is the wrong answer. The correct answer is Amar Jawan Jyoti and National War Memorial. Now my next question is, do you know why our Prime Minister visits Amar Jawan Jyoti and National War Memorial? Does anyone know the answer? So I'll tell you. Our Prime Minister goes to Amar Jawan Jyoti to pay tribute to our the soldiers.
दिवाली घर आओगे ना, मैं तुम्हारी राह देखूंगी। संदेश आते हैं हमें तरफाते हैं, तो चिट्ठी आती है पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सोना सोना है। ऐ गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करेगी क्या, मेरे गाँव जा, मेरे दोस्त को सलाम दे। वही थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। आप लोग की छुट्टी मंजूरी हो चुकी है, आप लोग अपने अपने घर जा सकते हैं। मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा, मैं वापस आऊंगा। आज पूरा देश क्रोधित है, पूरा देश आक्रोशित है और पूरा देश गुस्से से उबल रहा है। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में आतंकियों ने सीआरपीएफ के काफिले पर हमला किया है। Tragic day for India. 40 CRPF jawans have been killed in the worst attack against everyone in Kashmir ever. ये हमला 2016 में उड़ी में हुए आतंकवादी हमले से भी बड़ा है और इसने पूरे भारत के धैर्य और सब्र को तोड़ कर रखा। क्या बदले के लिए आपका खून खोल रहा है? कमांडर्स, who are we? Indian Army ने ये जंग शुरू नहीं की थी, but we will bloody hell finish it. How's the Josh? How's the Josh? I said, how's the Josh? जोश की बूंदें बूंदों में जी नहीं गूंजे, रुको न सपनों के तूफानों को, रुको न ख्वाबों की उड़ानों को, रुको न बातों के निशानों को। आगे जैसे सादे के इरादे जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरे से निकलेगी चिंगारियां। ओ जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा है, जिगरा से निकलेगी चिंगारियां। With a round of applause. Hello students, Happy Republic Day to all. Happy Republic Day to all. So we conclude that this meaningful Republic Day, I want to express how incredibly proud I am of each one of you. Your performances today were just not on the stage, they were the reflection of your passion, discipline and love for your nation. I know how much hard work you have done and it is really appreciable. Lots of rehearsals and your work has been good. Thank you so much. I'm proud of you all students.